Home Minister Amit Shah, who was earlier announced, and I quote him now, that inspired by the vision of the Prime Minister to free the nation from the colonial imprints. Today he says we've decided to rename Port Blair as Sri Vijayapuram. We'll also have Ankit joining us in just a moment to really understand what he said. But before that, Amit is also joining us from our newsroom. Amit, बड़ा फैसला है, बहुत समय से इस फैसले को लेकर चर्चा हो रही थी। इसके पीछे की क्या सोच है अमित? और अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स को लेकर भी इस तरह की हमने खबरें पढ़ी थी कि उनको भी रीनेम किया जा सकता है। जी देखिए, ये जो पिछले अगर आप देखिए 10 सालों में लगातार सरकार ने जो अंग्रेजों के ज़माने में जो थे, जो प्रतीक के तौर पर थे, जो कॉलोनियल लेगेसी के तौर पर थे, चाहे राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया हो, चाहे जॉर्ज पंचम की मूर्ति जिस कैनोपी में थी वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया की मूर्ति लगाई गई, इस तरह से रेस कोर्स जो कि प्रधानमंत्री का आवास था, 7 रेस कोर्स, उसको लोक कल्याण मार्ग किया गया। ये जब सरकार बनी तब से ही ये बात थी मोदी सरकार में कि जो अंग्रेजों के प्रतीक के तौर पर है, हम आज़ादी के 75वें साल मना रहे हैं और इसके बावजूद हम उस लेगेसी को लेकर जी रहे हैं जो कि कॉलोनियल लेगेसी है। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको याद होगा अंडमान निकोबार का भी जो नाम है उसका नाम बदल के शहीद और स्वराज कर दिया गया था। इसी तरह से बदलेगा और इसके पीछे भी मकसद यही है कि जो पोर्ट ब्लेयर है जहां पर कि सिल्वर जेल भी है, जहां पर आज़ादी के कई लोग वहां पर उन्होंने एक संघर्ष किया है जो उन जेलों में बंद थे, और इसीलिए जो विजयश्री नाम दिया गया है उसके पीछे मकसद यह है कि उससे कैसे बाहर निकलकर देश जो है कैसे आगे बढ़ा और उसको कि भारतीयता जो आप कह सकते हैं कि भारत की जो लड़ाई थी आज़ादी की, और वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले तिरंगा भी जो फहराया था वो भी पोर्ट ब्लेयर का ही वो इलाके में आता है। तो इन सब वजहों से नाम बदला गया है और ये सरकार का मकसद भी था कि अंग्रेजों के प्रतीक से बाहर निकलने का वक्त है। जब देश 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहा हो तो जो प्रतीक है उससे बाहर निकलिए, कॉलोनियल राज से बाहर निकलकर नाम होने चाहिए, और इसीलिए कई ऐसे नाम बदले गए हैं जो कि सीधे अब भारतीय के साथ जुड़ा है, जो भारत का अपना नाम हो, भारत की अपनी पहचान के तौर पर होगी। जी अमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम हमें जानकारी दी। We'll also cut across to our colleague Ankit, who's also joining us from our newsroom, and he'll take you across that entire tweet that has come in from the Union Home Minister Amit Shah. And Ankit, that also interestingly details, the entire background, the backstory behind this name change. Absolutely. Shedding colonial legacy is absolutely correct, Deepthi, because Port Blair, it turns out, was named after an East India Company man called Archibald Blair. And so let's look through Amit Shah's tweet. He says, inspired by the vision of Prime Minister Narendra Modi to free the nation from the colonial imprints, today we have decided to name Port Blair as Sri Vijayapuram. So note the spelling, Sri Vijayapuram. While the earlier name had a colonial legacy, Sri Vijayapuram symbolizes the victory achieved in our freedom struggle and the Andaman and Nicobar Islands' unique role in the same. Andaman and Nicobar Islands have an unparalleled place in our freedom struggle and history. The island territory that once served as the naval base of the Chola Empire is today poised to be the critical base for our strategic and development aspirations. It is also the place that hosted the first unfurling of our Tiranga by Netaji Subhash Chandra Bose, and also the cellular jail in which Veer Savarkarji and other freedom fighters struggled for an independent nation. Deepthi. All right, Ankit, for the moment, thank you so much for getting us that quick insight into this. We also have Pramod Tiwari ji, member of the Rajya Sabha, also joining us for a quick insight into this. Pramod ji, good evening, sir, and thank you for speaking to us on Times Now. How would you respond to this big move? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही रख देना चाहिए, नाम परिवर्तन वाली पार्टी। ये काम तो कुछ करते नहीं, या तो भाषण देते हैं या नाम परिवर्तन करते हैं। उसका इतिहास हमारी आजादी के इतिहास से जुड़ा है। पोर्ट ब्लेयर का वहाँ हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, पर ये इतिहास भी है, कड़वा तथ्य, कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन जो है वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा था। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, मेरा इशारा भी किसी तरफ नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने माफी भी मांगी थी उसमें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ नाम ना परिवर्तित करे, कुछ काम भी करे। कुछ पोर्ट ब्लेयर के लिए ऐसी चीजें करते तो मैं उसका स्वागत करता। ये नाम परिवर्तन क्या है, इसलिए मैं समझता हूँ नाम परिवर्तन ही करने वाली पार्टी बन गई। आप लेकिन स्वागत करेंगे प्रमोद तिवारी जी इसका? मैं कह तो रहा हूँ ना कि नाम परिवर्तन का क्या स्वागत करना, कुछ काम करे तो उसका स्वागत करें।
उसके लिए कुछ योजनाएं चलाएं। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहां कैद थे उनके लिए कुछ करें, उसका स्वागत करें। आपको अच्छा मिल गया है, काम करे कांग्रेस सरकार, दूसरी सरकारें, वो आप आए बस नाम बदल लें। चलिए, प्रमोद तिवारी जी, आपने हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो द कांग्रेस फॉर द मोमेंट सेइंग दैट देयर इज नथिंग टू वेलकम और नॉट वेलकम इन द डिसीजन. We want the government to look at the betterment, the welfare of everyone. With this, we'll also quickly slip into a break. When we come back, there's lots more coming up.